So welcome to our YouTube series in which we are decoding UPSC prelims PYQs from 1979 to 2024. Here we are solving 45 plus years of PYQs and it is theme wise and subject wise. And the same question you can appear on our PIQ portal on Edukami website and इसके भी notes आपको theme wise provide किए जाएंगे. The link is in description below. So today's topic is System of Government and Emergency Provisions Part 1. Remember, there are 2 videos of this topic. So stay tuned for second video also. Let's start with the first question. With reference to Union Government, consider the following statements. This question was asked in 2021. पढ़ते हैं क्वेश्चन को. Gopalaswamy Iyengar Committee suggested that a minister and secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. Second statement पढ़ते हैं. In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of Administrative Reforms Commission 1966. इसी को First ARC Commission बोलते हैं. First ARC Commission. And this was placed under the Prime Minister's charge. Now, in exam conditions, this question is very tough. अगर एग्जाम में अगर ऐसा आ रहा है, जनरली हम ये सब टॉपिक्स कवर नहीं करते हैं जब while रीडिंग नॉर्मल बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी. फाइन. तो एग्जाम कंडीशन में ट्राई करना अवॉइड करने का बिकॉज इट इज वेरी मच ट्रिकी, बट विल ट्राई टू सॉल्व इट इन सम और द अदर वे. Now there is a pro mentor tip for you that this Gopalaswamy Iyengar Committee is important for you. He was a member of the drafting committee of the Constitution. If you know the drafting committee, it was around 1947. Okay? And the question was asked in 2021, and this is basically talking about around 1970s का time frame. ठीक है? तो generally it was very tough question while solving in prelims. देखते हैं. Gopalaswamy Iyengar Committee suggested that the minister and secretary be designated solely. You can say that this is kind of extreme statement, solely pursuing the subject of administrative reform. क्यों भाई, क्यों solely? और भी नहीं हो सकता क्या? So this is not. Second, in 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of Administrative Reforms Commission, which is first ARC Commission, and this was placed under Prime Minister's charge. Yes, this is correct. Answer is B. Now this question was very tough under exam conditions. I would like to repeat it again. अगर एस टाइप का क्वेश्चन आएगा, try to skip it because गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं. Let's see the solution part. Solution part में अगर देखते हैं, तो you just have to remember or make note of it that DOPT was set up under Cabinet Secretary. Since Cabinet Secretary was under PM's charge, it can be concluded that DOPT was under PM's charge. ये यूपीएससी फिर से ये थीम दोहरा सकती है, तो उसको ध्यान रखिएगा. Let's move to second question. Question number 2. This question was asked in 2023 again. अब अगर आप देखेंगे, अगर आपने यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं, तो यू नो दैट पहले यूपीएससी वाज फोकसिंग ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्पेशली इन 1980s 90s. फिर बीच में 2010 2020 तक पूरे डेकेड्स में 2 डेकेड्स यूपीएससी ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से क्वेश्चंस को टच ही नहीं किए. लेकिन वापस वी आर सीइंग द ट्रेंड दैट यूपीएससी इज टचिंग द क्वेश्चंस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ध्यान रखिए, this topic is very much important for you now. Fine. Prisons, home guards, उसको ध्यान रखिएगा, अलग से पढ़िएगा. Arrest, detention, etc. Now ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. In India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for day-to-day administration of prisons. Yes, prison is under state list, है ना, तो state government ही manage करेगा. It seems logical. Second statement पे आते हैं. In India, prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government. Now 1894 जो ब्रिटिश एरा की बात है, तब तो प्रोविंसेस ही होते थे, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में ही था. तो दिस सीम्स आल्सो लॉजिकल. एंड अगर हम ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट 2 इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. तो अगर ऑप्शन में जाऊं तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. फाइन. अभी ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, बाद में यही चल के स्टेट गवर्नमेंट बन गया एंड स्टेट गवर्नमेंट में ही स्टेट लिस्ट है प्रिजन्स. This seems correct. Before moving to question number 3, we are having our prelims support program 2025, which is still going on. You can check out its feature. इसके कुछ components हैं. It will have practice test, marathon session, book reading session, revision session, sectional test and full length test. It will also have UPSC mixed test, जहाँ UPSC के important questions जो बाकी टेस्ट में आते हैं, यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स में होते हैं लाइक CDS, CAPF एक्सेट्रा, वहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठा के आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि यूपीएससी किस थीम को इंपॉर्टेंट समझती है और इसके हाईली चांस होते हैं यूपीएससी में वापस रिपीट हो जाए सिविल सर्विसेज में.
करंट अफेयर्स रिविजन, सीसैट सपोर्ट, मेंटरशिप, टेस्ट डिस्कशन एट लास्ट, प्रयास, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। आपको कुछ कंपोनेंट्स एंड यूएसपी बता दूं आरपीएसपी के कि 45% ऑफ आर एनरोल्ड स्टूडेंट्स क्वालिफाइड दिस ईयर प्रीलिम्स। They attempted with confidence. It also boosted their accuracy, and around 50% of the questions were from PSP, were direct hit. So do check out its features. Let's move to question number 3. Question number 3 आते हैं होम गार्ड्स, है ना। अब होम गार्ड क्या है? It is kind of a force, not a permanent police force, but it is a kind of a force who is helping in assisting the state police force to maintain law and order, है ना। होम गार्ड हमेशा स्टेट पुलिस को असिस्ट करता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। अब इसको देखते हैं। होम गार्ड आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट, ठीक है, एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, दिस सीम्स इलॉजिकल। होम गार्ड स्टेट में होते हैं, पुलिस भी स्टेट सब्जेक्ट है, तो ज्यादा चांसेस है कि होम गार्ड भी स्टेट लिस्ट में आए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल। ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आ जाते हैं अगर इसमें, तो ऑल थ्री तो नहीं हो सकता, ठीक है, कट गया। The role of home guard is to serve as an auxiliary force to the police in maintenance of internal security, है ना। हमने अभी ध्यान दिया कि इंटरनल सिक्योरिटी मतलब मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग पीस, प्रिवेंटिंग एनी काइंड ऑफ थ्रेट, ठीक है। तो दिस सीम्स करेक्ट, लॉजिकल भी है। अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बहुत मॉडरेट काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, तो दिस सीम्स करेक्ट, फाइन। अब नन भी नहीं हो सकता, फाइन। टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्टल एरियाज, the border wing home guards battalions have been raised in some states. Now this statement is also very much moderate. Some states, to prevent infiltration on the international border, the border wing home guards have been raised in some states. Yes, it is possible, है ना। You cannot directly discard it. The statement is very much moderate, so this seems also logical and right. तो आंसर 1 भी नहीं हो सकता, बचा only 2. This is your answer. You are getting it how we are reaching to an answer. सेम वे यू नीड टू एलिमिनेट, फाइन। अब जनरली हम होम गार्ड्स पढ़ते नहीं हैं, बट यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है। आने वाले एग्जाम में यूपीएससी ये सब क्वेश्चंस या थीम्स पूछ सकती है। जस्ट मेक श्योर दैट यू रिमेंबर होम गार्ड्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। यस, है ना। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, ठीक है। इसमें आर्टिकल 365, आर्टिकल 355 के अंडर सेंटर हैज अ ड्यूटी। नाउ अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। इट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, ये पहला करेक्ट ही था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एग्जेम्प्ट करता है स्टेट को ताकि वो लीगल काउंसिल नहीं प्रोवाइड कर पाए अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन? दैट स्टेट इज डिटेनिंग यू for the cause of public interest, for the cause of maintaining law and order, if you are perceived as threat. Threat to whom? Threat to law and order, threat to public order. Now see the third statement. According to Prevention of Terrorism Act, this is POTA. POTA was a special act to deal against terrorism. Prevention of Terrorism Act. Confession of the accused before the police cannot be used as an evidence. Now POTA was granted special powers to police. जहां थर्ड डिग्री बहुत यूज किया जाता था, अभी POTA is repealed, ठीक है। पोटा इज रिपील्ड नाउ, पोटा इज नॉट देयर, अभी देयर इज, जस्ट रिमेंबर, यूएपीए 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। दिस इज अ ब्रॉड लॉ विच कवर्स ऑल दिस थिंग, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्सेट्रा। पोटा वाज अ लॉ which had allegations upon police for the human right violations and illegal detentions, ठीक है। बहुत ज्यादा पावर दी गई थी पुलिस को, तो अभी ये एक्ट रिपील हो चुका है, फाइन। ना अगर ये देखूं तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज कोटा में कन्फेशन अगर ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस वाज यूज्ड एज एन एविडेंस, ठीक है। इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, इट इज नॉट, ओनली 2 इज करेक्ट। रिमेंबर पोटा कब आया था? 2002 में। ये क्वेश्चन पूछी गई थी 2023 में, लगभग 20 साल हो रहे थे, इसलिए यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ रहा था। लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट। अकॉर्डिंग टू 355, इट शैल द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। As per Article 22, no person who is arrested shall be detained without being informed as soon as the grounds for such arrest, nor shall he be denied right to consult and be defended. And according to Article 22, subclause 5, when any person is detained, the persons of order made under any law providing for preventive detention, the authority making it order communicate to such person on the grounds which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. Now this POTA came in place of TADA.
राइट। टाडा वाज टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987, उसको रिप्लेस करके पोटा आया था, राइट। एंड पोटा के में पुलिस के अगर सामने कोई भी एक्यूज अगर एविडेंस देता है तो एक्सेप्टेबल था। इट वाज ग्रांटेड स्पेशल पावर्स टू पुलिस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, with reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. अरे भाई parole कब से right हो गया? आप प्रिजन जाते क्यों हो? रिफॉर्म के लिए। वहां आपका ये parole मतलब क्या होता है? आप छूट के आ रहे हो फॉर सम टाइम, है ना, तो आपका राइट नहीं हो गया, आप प्रिजन गए हो सजा काटने के लिए, तो parole कैसे राइट हो सकता है? दिस स्टेटमेंट इज absurd. Second, state government has their own prisoners release on parole rules. Yes, है ना, you know that prison किस में आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो स्टेट लिस्ट में आता है तो स्टेट ही बनाएगा पैरोल के रूल्स। दिस इज करेक्ट, आंसर इज 2 ओनली, विच इज बी। वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू अप्लाई सम लॉजिक। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि यूनियन लिस्ट में क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आ सकते हैं, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, हलवा लगेगा। नाउ दिस इज अ प्रो मेंटर टिप फॉर यू that you need to know the difference between furlough and parole. ठीक है, it is a pro mentor tip for you. When the furlough is seen as a matter of right of the prisoner, but parole is not. ठीक है, यूपीएससी वैसे पूछ सकती है, just remember this. ठीक है, and furlough is to be granted periodically irrespective of any reason. It is granted merely to enable the prisoner to retain family and social ties and to counter the ill effects of prolonged time spent in prison. Both parole and furlough can be denied by the competent authority if they are of the opinion that releasing the inmate would not be in the interest of society. ठीक है, तब भी competent society, competent authority की ही चलती है। ठीक है, but you know that parole is not a matter of right, but furlough is. Moving to next question. Question number 6. The Constitution of India, देखिए 2020 में पूछा गया। The Constitution of India classify the ministers into 4 ranks. Cabinet Minister, Minister of State with independent charge, Minister of State and Deputy Minister. Second, the total number of ministers in the Union government, including the PM, shall not exceed 15% of the total numbers of the members in the Lok Sabha. Now, Constitution generally broad guideline देता है. It do not give any kind of detailed guideline. ठीक है, Constitution makers has left it upon the Parliament and lawmakers to make the laws, to make the provisions as per the needs of the society. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासिफाई मिनिस्टर इनटू दिस, बट अ प्रो मेंटर टिप फॉर यू, यू जस्ट नो दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय पीएम। फाइन, ये आपको पता है जनरली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज अ हायरार्की, इट हैज कैबिनेट मिनिस्टर एट द टॉप, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विच इज एग्जिस्टिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड देन देयर आर डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, तो दिस इज द हायरार्की फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दिस is headed by PM. This is your pro mentor tip. Now again come to second statement. The total number of ministers in the union government including the PM shall not exceed 15%. Now this was 91st Constitutional Amendment Act 2003 है ये. This is 91st Act 2003. This is correct. This is wrong. Answer is 2 only. Easy question, but आपको ये concept पता होना चाहिए. यूपीएससी ने पूछ दिया 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज दिस थिंग. नाउ ये आपकी ड्यूटी है कि आपको पता होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हायरार्की क्या है, बिकॉज यूपीएससी कैन आस्क इट इन सम अदर फॉर्म, है ना. अगर पीवाईक्यू को आप अच्छे ढंग से करोगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू प्रीलिम्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स of the government who are allowed to participate in the meetings of Parliament of India. Second, according to Constitution of India, the Attorney General submits his resignation when the government which appointed him resigns. Now, if you see this question, एक तो see, we'll go with knowledge, logic, and then maybe blind guess. जय माता दी, ठीक है, JMD. Fine. Knowledge, logic, then जय माता दी, blind guess. बट इफ यू सी, ये बहुत वैसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, वैसे गलत करोगे, बट वो तुक्के से शायद सही होता है आपका. ये हो सकता है कि अगर आप ऑनली देख के कर रहे हो तो तुक्के से सही होता है. इन जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, बट सॉलिसिटर जनरल इज नॉट अलाउड. सॉलिसिटर जनरल इज नॉट अलाउड, और द सॉलिसिटर जनरल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट. द रोल ऑफ सॉलिसिटर जनरल
is assisting the Attorney General. Now, Attorney General is a constitutional post. It is under Article 76. But if you talk about Solicitor General, it is a statutory post. मतलब अटॉर्नी जनरल को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है और उनमें प्रोविजंस हैं कि वो पार्टिसिपेट कर पाए पार्लियामेंट की मीटिंग्स पे, बोल पाए, ठीक है. बट यस, ऑफ कोर्स दे विल नॉट वोट. बट इन द केस ऑफ सॉलिसिटर जनरल, द पर्सन विल नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट. ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी कैन आस्क इट अगेन. ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था जब आया था. नाउ कम टू सेकंड. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, हमने फिर देखा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात आती है, जनरली ब्रॉड गाइडलाइंस होते हैं, कोई भी डिटेल्ड गाइडलाइंस नहीं होते हैं. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट्स हिम रिजाइंस. So if I talk about this statement, according to Constitution of India, Constitution में ऐसा कुछ नहीं लिखा है. This is also incorrect. This is also incorrect. दोनों incorrect है. Answer is D, neither one nor two. है ना? Constitution में ऐसा कुछ provision नहीं है Attorney General को हटाने के लिए. Let's see the solution part. According to 76, Attorney General has the right to speak and take part and the joint sitting, but without right to vote. ये ध्यान रखिएगा हमेशा. Solicitor General is a statutory post which is assisting Attorney General in the fulfillment of official responsibility. Now at the state level, कौन स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, प्लीज कमेंट में बताइए. एट द सेंट्रल लेवल यू नो दैट अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट द सेंटर, बट एट द स्टेट लेवल व्हाट इज द नेम? आई वांट टू नो, प्लीज टेल इन कमेंट्स. सॉलिसिटर जनरल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग. ये ध्यान रखिएगा, मेक द नोट आफ्टर इट, एज इट इज अ स्टैट्यूटरी पोस्ट. There is no provision regarding procedure and the grounds for the removal of the Attorney General mentioned in Constitution, right? Except that the person holds office during the pleasure of President. ठीक है? So both statements are incorrect. Moving to next question. Question number 8. If the President of India exercises his power as provided under Article 356. Article 356 is President's rule. The Constitution of a particular state. Then 4 ऑप्शन दिए हैं. क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में. आर्टिकल 356 इंपॉर्टेंट था, है ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पढ़ना है. पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट रहेगा. सेम गोज विद प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड देयर इलेक्टोरल कॉलेज एज वेल एज देयर रिमूवल. नाउ इस पे आते हैं. द असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व. नो, ऑटोमेटिकली नहीं डिसॉल्व होता असेंबली. इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल, है ना, एस आर बोम्बई जजमेंट. नेक्स्ट, द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. थर्ड, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट. नो, है ना, कभी ना कभी आप प्रेसिडेंट रूल वाले स्टेट में रहे होगे, आपका कोई भी फ्रीडम नहीं लिया जाता. ठीक है? इट अफेक्ट्स द रिलेशंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड नॉट योर फंडामेंटल राइट्स. द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट. नाउ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज व्हेनेवर प्रेसिडेंट रूल इज एम्प्लाइड, now the parliament comes into the picture. Parliament can make laws. तो यहाँ देखते हैं, the powers of the legislator of that state shall be exercisable. बहुत moderate statement भी है, shall be exercisable or under the authority of the parliament. Now this is correct. Answer is B. ठीक है? Easy question if you apply right mind. Solution देखते हैं. If the president uses his power provided by the article 356, then the state legislature becomes temporarily suspended. Yes, legislature temporarily suspend हो सकता है, dissolve नहीं होगा. There is a difference between suspension and dissolution. Now, in the case, Parliament uses its authority on the issues which were to be decided by state legislature. In other words, Parliament can take decisions on the subjects which were under authority of the state government. मतलब Parliament can legislate on the state subjects, state list. Moving to next question, which is question number 9. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity. देखते हैं, डेमोक्रेसी इंडिया में जब आई थी 1947 में, तो क्यों आई थी, है ना? सब तो बहुत ज़्यादा मास इलिटरेसी थी, तब भी हमको डेमोक्रेटिक राइट्स दिए गए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई, तो कुछ तो रीज़न होगा ना. उसी की बेसिस पे ये क्वेश्चन था. नाउ सी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन. सेकेंड, मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप. एग्जीक्यूटिव लीडरशिप मतलब मिनिस्टर या स्टेट. सेकेंड, a superior individual with dynamism and vision. Now superior individual 1947 में possible है क्या, right? Because we are engaged with caste discrimination, gender discrimination, poverty, illiteracy and what not, है ना, traumas of partition. तो ये भी नहीं है. A band of dedicated party workers. Democracy is not about any political party. Democracy is also about you.
people of India. ठीक है, the intelligence and character of ordinary men and women. This statement is very powerful. Fine, answer is A. 2017 का क्वेश्चन है. Let's move to next question. The main advantage of the parliamentary form of government is that now parliamentary form of government को यूपीएससी बहुत ज़्यादा पसंद करती है. हम पहले के वीडियो में भी, बाद के वीडियो में भी यही बताते रह गए कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कोर क्या है, कोर क्या है, कोर क्या है. व्हाट इज द कोर? दैट एग्जीक्यूटिव is responsible to legislature. This is the core. The main advantage of parliamentary form of government is the executive remains responsible to legislature. This is the core. Fine. Responsibility is the core word, which is different from presidential system जहाँ stability ढूंढी जाती है. But India के केस में जहाँ parliamentary system of government है, वहाँ responsibility ढूंढी जाती है. UPSC will ask it again and again, and तब भी देखना बहुत लोग गलत करके आएंगे, है ना. तो ये ध्यान रखिएगा कि आपसे गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर ये कोर कंसेप्ट आपको क्लियर है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. द आंसर इज सी. ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर. दिस इज द कोर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. आइए देखते हैं क्वेश्चन. 2017 में पूछा गया था. देयर इज ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया. यहाँ नॉट अ फीचर बोला है ना, नॉट. हमेशा ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट्स नॉट पढ़ते ही नहीं है ना, पता नहीं किस माइंडसेट में जी रहे होते हैं, राइट, अवेयर नहीं होते हैं. ठीक है, तो इंश्योर करना कि आप क्वेश्चन 2 बार पढ़ें ताकि कभी कुछ मिस ना हो. नॉट अ फीचर बोला है तो देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. यस देयर इज. तो ये नहीं हो सकता बिकॉज नॉट पूछा हुआ है. देन powers have been clearly divided between center and states. Yes, we have 7th schedule where demarcation of powers between union and states as well as concurrent powers has been given. ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. ये भी नहीं हो सकता. द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा. अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये भी नहीं होगा, है ना. यूपी से ज्यादा सीट्स आती हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ से कम आती हैं. ये स्टेटमेंट एक्चुअली खुद में करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है नॉट अ करेक्ट फीचर. इट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स. नाउ दिस इज द केस ऑफ अमेरिका, नॉट इंडिया. ठीक है, दिस वाज द केस ऑफ यूएस, अमेरिका. फाइन. तो इट इज द रिजल्ट ऑफ an agreement among the federating units. This is the answer. The Indian Federation is not the result of such an agreement, unlike the American Federation. Moving to next question. Out of the following statements, choose the one that brings out the principal underlying cabinet form of government. Now हमने बार बार ये जाना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, उसी को ही वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है. तो आइए अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ, है ना. हमने क्या कहा था कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब जहां एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. ठीक है, दिस इज द कोर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड व्हाट इज द मेन अंडरलाइंग वैल्यू? रेस्पॉन्सिबिलिटी. आइए इसमें आंसर ढूंढते हैं. अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉम्प्लेक्स. अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो यूपीएससी बहुत चालाक है, बार बार हर जगह रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन कर रहा है. ठीक है, यूपीएससी भी समझता है कि अगर आपको कोर पता है तो आप इजीली कर सकते. कई लोग ना रट लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी उसको टिक मार दिया. बट यूपीएससी भी बहुत अवेयर है, इवॉल्व हो रहा है. फाइन. अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल. फाइन. यू नो लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर, ठीक है, वी हैव चूजन legislature, you have chosen legislature by voting. ठीक है, आंसर इज सी. चौथा ही पढ़ लेते हैं. डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट whose hold over the people is in a state of decline. Now this is a very subjective opinion. ठीक है, this cannot be true. That you need to know what is parliamentary form of government. You need to know what is parliamentary form of government. ये तो पता होना ही चाहिए. ठीक है. Second, Article 356, which is talking about president rule and its implication. Third, you should know about the virtues of democracy. अगर आपने इस टॉपिक से इतना कर लिया, then you are good enough to solve any questions of prelims. So stay tuned for part 2, and I hope you are liking our initiative. Show us your love by liking, commenting, and sharing our video. Thank you.